آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ تلنگانہ اسمبلی کے سیشن کا کل سے آغاز۔ اسپیکر نے کہا کووڈ نیگیٹو رپورٹ اجلاس میں شرکت کے لیے ہوگی لازمی۔ حیدرآباد میٹرو کی خدمات کل سے ہو جائیں گی بحال۔ کورونا کی علامات رکھنے والوں کو سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ کورونا کی علامات کی صورت میں فوری ٹیسٹ کرانے وزیر صحت ایٹلا راجندر کی نصیحت۔ موسمی امراض کی روک تھام کی ضرورت پر دیا زور۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 90,000 نئے کیسز، ریکوری کی شرح 77% سے تجاوز۔ سیزن کا شیڈیول جاری۔ اس مہینے کی 19 تاریخ کو ممبئی انڈینز اور چنئی سپر کنگز کے درمیان پہلا مقابلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ مقننہ کا اجلاس کل شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس مرتبہ کووڈ کی وبا کے پیش نظر اسمبلی اور کونسل کے اجلاس کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ تلنگانہ اسمبلی اور کونسل کا سیشن کل سے شروع ہو رہا ہے۔ کووڈ کی وبا کے پیش نظر اس اجلاس میں خصوصی احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسمبلی کے اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی اور کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ تمام ارکان مقننہ، عملے کے اراکین اور اسمبلی کے احاطے میں قدم رکھنے والے تمام افراد کو اپنا کووڈ ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ صرف ان افراد کو اسمبلی میں داخلے کی اجازت رہے گی جن کا ٹیسٹ نگیٹو ہوگا۔ کئی وزراء اور ارکان مقننہ نے اپنا ٹیسٹ کرا لیا ہے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ کورونا پازیٹیو پائے گئے اور اس لیے وہ اس سیشن میں شرکت نہیں کر پائیں گے۔ کووڈ کے پیش نظر امور مقننہ کے وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے سیشن کے انعقاد کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق اسمبلی اور کونسل میں 6 فیٹ کی دوری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیشن میں شرکت کرنے والے ارکان مقننہ کے علاوہ عہدیداروں، دیگر ملازمین اور میڈیا کے نمائندوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کورونا ٹیسٹ کرا لیں۔ سیشن کے دوران زیر بحث آنے والے امور کے بارے میں چیف منسٹر KCR نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ پہلے ہی ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس سیشن کے دوران نیا ریونیو ایکٹ منظور ہو جائے۔ ریاست سے متعلق اہم امور کے علاوہ مالی صورتحال پر کووڈ کے اثر اور دیگر مسائل پر مباحث کا امکان ہے۔ KCR نے وزراء اور عہدیداروں سے کہا کہ وہ سیشن کے دوران کسی بھی معاملے پر مباحث کے لیے تیار رہیں۔ سیشن کے دوران مختلف بلوں اور قراردادوں کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ KCR نے وزراء سے کہا کہ وہ تمام حقائق کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیشن کا انعقاد خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے۔ اس کے دوران صحت مند مباحث کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ کانگریس پارٹی نے اسمبلی سیشن کے دوران عوامی مسائل اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسمبلی میں پارٹی کے قائد ملو بھٹی وکرمارکا نے پارٹی کے ارکان مقننہ کے ساتھ سیشن کے دوران زیر بحث آنے والے امور اور پارٹی کی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ارکان مقننہ کو حکومت کے وعدوں اور اس کی ناکامیوں کا تفصیل سے جائزہ لینا چاہیے۔ CLP لیڈر نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ زرعی بحران، کورونا کے روک تھام، ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر، آبپاشی پروجیکٹس میں کرپشن اور گریٹر حیدرآباد میں سڑکوں کی حالت جیسے مسائل کا تفصیل سے جائزہ لیں۔ اس دوران موصولہ اطلاع کے مطابق TRS مقننہ پارٹی کا کل شام حیدرآباد میں اجلاس ہوگا جس میں سیشن کے دوران پارٹی کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ انلاک 4 کے تحت کل سے دلی، بنگلور، احمد آباد، چنئی اور حیدرآباد میں میٹرو ریل خدمات بحال ہو جائیں گی۔ کووڈ کے پیش نظر مرحلے وار انداز میں میٹرو خدمات دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد میں کل سے میاپور، LB نگر کوریڈور پر میٹرو ٹرینیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ منگل سے رائے درگم ناگول کوریڈور پر اور چہارشنبے سے تیسرے کوریڈور پر بھی خدمات بحال ہو جائیں گی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی نے کہا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में गवर्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। आला तालीम की तब्दीली में नई तालीमी पॉलिसी के रोल के उन्वान पर मुनक्कद होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के वज़राए तालीम, रियासती यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और दीगर आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। वज़ारत तालीम इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। 34 साल के बाद नई कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इसका मकसद स्कूल्स और आला तालीमी सतहों पर बड़े इस्लाहात लाना है। इस पॉलिसी के जरिए मुल्क को फाल नॉलेज सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है। तवक्को है कि ये पॉलिसी भारत को आलमी सुपर पावर बनाने में मददगार साबित होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस के 3 रोज़ा दौरे के बाद तेहरान पहुंचे। उन्होंने अपने ईरानी हममनसब ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी से मुलाकात की। दोनों कायदीन ने अफगानिस्तान के बशमूल इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत दिफा ने बताया कि दोनों कायदीन के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। दोनों वज़रा ने भारत और ईरान के दरमियान सदियों पुरानी सकाफती, लिसानी और तहजीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। इससे कबल राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने खलीज फारिस की सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत में कोरोना वायरस से रूबा सेहत होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 70,072 अफराद दवाखानों से डिस्चार्ज हुए। मुल्क में कोरोना रिकवरी की शरह इस वक्त 77.23% है। शरह अमवात सिर्फ 1.73% है। तेलंगाना में कोविड-19 से रूबा सेहत होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,927 अफराद दवाखानों और होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,60,530 हो गई है। रियासत में इस वक्त फाल केसेस की तादाद 32,553 है। वज़ारत सेहत ने बताया कि रियासत में रिकवरी की शरह 76.2% है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मजीद 10,794 नए मामला सामने आए हैं। इसके साथ ही रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 4,98,125 हो गई है। रियासत में फाल केसेस की तादाद 99,689 है। मरकज ने 5 रियासतों और एक मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके के 35 अजला में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। मरकज के सेक्रेटरी बराए सेहत राजेश भूषण ने इन रियासतों के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। ये अजला मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पुडुचेरी, झारखंड और दिल्ली में हैं। इस मौके पर राजेश भूषण ने कहा कि इन अजला में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दाम का जायजा लिया गया। कंटेनमेंट जोन्स में कोरोना टेस्टों की तादाद बढ़ाने की हिदायत दी गई। रियासतों से कहा गया कि वो दीगर अमराज में मुब्तला अफराद और मुअम्मर लोगों पर खास तवज्जो दें। रियासतों से कहा गया है कि वो इस सिलसिले में एक जामे एक्शन प्लान तैयार करें। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आशा वर्कर्स और ANM से कहा कि वो कोरोना वायरस की मुतासरीन की हिम्मत अफजाई करें। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत भर के 22,000 आशा वर्कर्स और 500 ANM से खिताब किया। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि कोविड से मुतासर होने वाले 99% अफराद रूबा सेहत हो रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में ज़मीनी सतह पर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो ऐसे अफराद का RT-PCR टेस्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR बारहा ये बात कह रहे हैं कि अवाम के ताउन से किसी भी मर्ज का सामना किया जा सकता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मरकजी हुकूमत आत्मनिर्भर भारत के तहत PM स्वनिधि स्कीम के जरिए ऐसे अफराद को कर्जे फराहम कर रही है। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में इस स्कीम से मुस्तफीद होने वालों ने कहा कि ये स्कीम उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना की वबा से मुतासिर फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को मरकजी हुकूमत दरकार इमदाद फराहम कर रही है। इन व्यापारियों को 10,000 रुपये के कर्जे मंजूर करते हुए इनकी मदद की जा रही है। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की तादाद 9,000 है। इनमें सड़क के किनारे बड्डियों पर फल और तरकारी बेचने वाले, कपड़ों को इस्त्री करने वाले और पान की दुकान चलाने वाले शामिल हैं। कोरोना की वजह से रोजगार से महरूम इन अफराद को मरकजी हुकूमत 10,000 रुपये के कर्जे फराहम कर रही है।
भद्राद्री जिले के पालवंचा में 2500 व्यापारियों में से 500 व्यापारियों को अब तक मुख्तलिफ बैंक से 10,000 रुपये के कर्जे हासिल हुए हैं। इन अफराद ने अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दिया है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुश्किल की इस घड़ी में इनकी मदद की है। కేంద్ర ప్రభుత్వం సాయంతో నేను రమణయ్యని మళ్ళీ బండి పెట్టుకొని బతుకుతున్నా, దానివల్ల మంచిగా బతుకుతున్నాం। నా పేరు సీతారాములు అండి। ఇట్లా 10,000 మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వటం వల్ల కరోనా టైంలో ఆదుకున్నారు, చాలా సంతోషం అండి। पालवंचा म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीकांत ने बताया कि कोरोना की वजह से शदीद माली मुश्किलात से दो चार इन अफराद को खर्च की शक्ल में मरकज की जानिब से इमदाद मिली है। మన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో మొత్తం 9,000 మంది వీధి వ్యాపారస్తులను గుర్తించడం జరిగింది। దానిలో పాల్వంచ మున్సిపాలిటీలో 2,500 వీధి వ్యాపారస్తులను గుర్తించి ఇప్పటి వరకు 450 మందికి లోన్ శాంక్షన్ అవ్వడం జరిగింది। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। मुल्क में तग़ज़िया की कमी का शिकार माओं और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के लिए पोषण अभियान स्कीम पर अमलावरी हो रही है और इस स्कीम के खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में भी इस स्कीम पर मौसर अंदाज में अमलावरी की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। आदिलाबाद ज़िले में पोषण अभियान स्कीम पर कामयाबी के साथ अमलावरी हो रही है। ज़िले के आदिलाबाद, उटनूर, बोथ, जीनत और नारनूर में 992 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और 264 मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स में पोषण अभियान पर अमलावरी हो रही है। इन मराकज़ के ज़रिए 11,807 हामिला ख़वातीन और लड़कियों और 58,076 बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ फ़राहम की जा रही हैं। कोरोना के पेश नज़र आंगनवाड़ी टीचर्स कोविड-19 क़वायद के मुताबिक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ तक़सीम कर रही हैं। इस्तेफादा कुनिंदगान ने इस स्कीम के लिए मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 30 తారీఖు దాకా పోషణ అభియాన్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। కాకపోతే ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే కరోనా ఉన్నది కాబట్టి తగిన మాకు డైరెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి ఆదేశాలు వచ్చినాయి। కరోనా నియమాలు పాటించుతూ రోజుకు 5 పిల్లల్ని బరువు దోకమన్నారు। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। बीसीसीआई ने आईपीएल के 13वें सेशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस आईपीएल का पहला मैच 19 सितंबर को दुबई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। भारत के म्यारी वक्त के मुताबिक आईपीएल की इफ्तिताई तकरीब दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। मैच का आगाज रात 7:30 बजे होगा। शेड्यूल के मुताबिक 24 मैच दुबई में, 20 मैच अबुधाबी में और 12 मैच शारजा में खेले जाएंगे। एक दिन में 2 मैचों की सूरत में पहला मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और दूसरा मैच रात 7:30 बजे खेला जाएगा। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली के सेशन का कल से आगाज। स्पीकर ने कहा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट इजलास में शिरकत के लिए होगी लाजमी। हैदराबाद मेट्रो की खिदमात कल से हो जाएंगी बहाल। कोरोना की अलामत रखने वालों को सफर न करने का मशवरा। कोरोना की अलामत की सूरत में फौरी टेस्ट कराने वजीर सेहत ईटला राजेंद्र की नसीहत। मौसमी अमराज की रोकथाम की जरूरत पर दिया जोर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 90,000 नए केसेस। रिकवरी की शरह 77% से तजावुज। आईपीएल के 13वें सीजन का शेड्यूल जारी। इस महीने की 19 तारीख को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान पहला मुकाबला।